So today we are going to cover like all the extension part, whatever required in Salesforce, and where we will get lots of benefit. And I'll try to explain each and every significance of that. And parallelly, after this, so we'll try to cover few things from the version controlling tool. Okay. So we have few extensions. So let's say if I'll go to advanced code searcher. So this is my extension. If I click on this link, extension is nothing. So it's a kind of additional application in the Chrome only. So this will be the part of Chrome. So if you will add the extension through this email ID and the same org in this org, so if you are logging the same org in another laptop, so you will not get this extension because in this Chrome only you have added this one. But yes, if you will log in with this Gmail ID, like whatever Gmail ID you have logged in, so then you will get this extension automatically in another browser only. Like this extension is always linked with this email IDs and all. So let's say I'm going to remove this this extension which is already existing in my system. So you can see now I'm going to make a duplicate of this. So you can see the difference. So you can see it's a quick find box, Apex classes, and lots of these things, and this advanced search, and parallelly this enter search text and all. Okay, so these are the things. Sorry. Yeah, so here yeah, so here now we are not able to see anything now, right? So even I'm not able to see any search box here. So see, these are the things. So whatever the benefit of that, so if I'll add this one, so now let's take an example. I want to get one Apex class. I want to read the code of that Apex class. Okay, so if I'll go to developer console, and my developer console is little slow or something like this. So if I want to search any of the things, or let's say I have custom setting or custom metadata, I have some custom setting name. So you will go to custom setting like this, custom setting. So this is your first step. Okay, second thing, what will you do? You will go there, and let's say you have around 200 300 custom setting. You will go to this name, let's say it start from T, let's say from trigger. You will go there and you will find out this one, and after that you want to go to API name or something like this. So there are multiple steps we are going to do now, right? It is like wastage of time. So if I want to do some shortcut, so what will I do? I'll just add this one in the, not even for custom setting, I'm telling for Apex class, Apex trigger, Visual Force page, Lightning Aura component, not web component, Aura component, and Visual Force component, and there are lots of things. If I add this one, you can see in the left side. So we have Apex class, triggers, Visual Force page, lots of things we have. Custom setting, custom metadata, and custom object is comes under the custom object only. You can find out the name, whatever the name we have. Let's say trigger. We have, these are the custom setting and custom metadata we are getting, and custom object also, whatever things which we have. Okay, so we no need to waste our time to find out the things. So we are on the same page and we are just hitting on the like name, and it will redirect us on the custom setting now. Okay, this is one benefit. Second benefit is, let's take an example. You are writing our test class. Means we are writing a test class, and for that test class, so we need to insert some test record in the database, some test record in the database. Okay, so on that scenario, what will you do? You need to write a DML on the account object. Let's take an example. You have to cover the code coverage for the Apex class where we need to insert the account record. तो उस सिनेरियो में क्या होगा? उस सिनेरियो के अंदर अपने को एक तो हम मैनुअली लिखेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अकाउंट acc equal to new account, it's acc.name, this, that, and this, all these things. There are lots of validation and lots of things is implemented. ठीक है, आपने टाइम वेस्ट किया कंप्लीटली लिखने के लिए, पूरा सिनेरियो आपने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन कस्टम लाइक टेस्ट क्लास के अंदर. लेट्स से you need to write 50 lines or 20 lines or even 5 lines. So why you are wasting your time? Because आपने ये लिखा, फिर उसको रन करोगे कंप्लीट, फिर रन करोगे, फिर दोबारा एडिट किया, फेल हो गई, फिर रन करोगे. तो बेस्ट वे है कि जो ऑलरेडी किसी अदर डेवलपर ने उस पर टाइम ऑलरेडी कंज्यूम किया है, सो यू कैन टेक देयर एफर्ट, डोंट पुट योर एफर्ट. If you don't have that much time, why we are wasting our time, right? So alternatively what we can do, so quick search के अंदर आप जाओ, let's take example new account. So आपको पता है
कि अपने को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ACC सॉरी अकाउंट इज इक्वल टू न्यू अकाउंट। अब सबको ये आइडिया है कि भाई जब हम अकाउंट लिखते हैं, मतलब इंसर्ट करते हैं, तो न्यू अकाउंट आता है, राइट? दिस इज कंपल्सरी इफ वी आर गोइंग टू इंसर्ट अकाउंट रिकॉर्ड। सो व्हाट विल आई डू, अल्टरनेटिवली आई विल गो देयर एंड आई राइट न्यू अकाउंट हियर, ठीक है? एंड आई नीड ओनली अपेक्स क्लास ओनली। एग्जिस्टिंग क्लास में आपको फाइंड आउट करना है कि जो एग्जिस्टिंग क्लास के अंदर ऑलरेडी, इफ वी ऑलरेडी हैव इंसर्टेड द अकाउंट, विल कॉपी दैट थिंग एंड विल पेस्ट इन आवर टेस्ट क्लास। आई एम राइटिंग हियर टेस्ट। So now I will open these few classes, test classes. So now you can see, do I have account? Yeah, we can say, oh, this is inserted, is already done. So we can copy this thing and we'll put it in our like class. So this is, let's say this is our Apex class. So this is very small code, but let's say if you have 50 lines and there are lots of things which we need to write, तो अपना यहाँ से copy करो और directly वो code को यहाँ पे चिपका दो, ठीक है? So इसमें आपका एफर्ट्स कितना बच गया, देखो आपको कंप्लीटली, आप अल्टरनेटिवली आप क्या करते, अकाउंट पे जाते, आपको देखना था कि मैंडेटरी फील्ड कौन कौन से, आप जाओगे, आप देखोगे ओके मैंडेटरी फील्ड्स के अंदर डेटा डालना है, ओके मैंडेटरी फील्ड वो है, ये है, वो है, फिर वैलिडेशन रूल देखोगे कोई इंप्लीमेंटेड तो नहीं है, कोई ब्रेक हो रहा है। तो बेस्ट है कि किसी ने जब टेस्ट क्लास लिखी हुई है तो उसने ये सोच के, ऑलरेडी सोच के लिखा होगा ये सब, राइट? ऑलरेडी किसी ने सोच के लिखी होगी ना पहले, तो जब उसने सोच के लिखा है तो व्हाई वी आर वेस्टिंग अवर टाइम, तो हम डायरेक्टली वही कॉपी कर लेंगे, वही पेस्ट कर लेंगे अपने पास। समझ में आया कॉन्सेप्ट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस यस। हाँ, सो बेस्ट वे यही है कि अपना जो एग्जिस्टिंग कोड है तो उसी को कॉपी करो और उसको अपना यहाँ पे चिपका दो, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग अवर टाइम। सो नॉट इवन फॉर अकाउंट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, और नॉट इवन फॉर टेस्ट क्लास। लेट्स टेक एग्जांपल, आपको बोला है कि वी आर गोइंग टू रिमूव ईच लाइक अकाउंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एवरीवेयर, मतलब कोई कस्टम ऑब्जेक्ट लगा लो। मेरे पास कोई एम्प्लॉय नाम का कोई कस्टम ऑब्जेक्ट है, जहां जहां पे मैंने एम्प्लॉय नाम का कस्टम ऑब्जेक्ट बना रखा है, तो मुझे वो एम्प्लॉय वाला डिलीट करना है, मुझे कोई फंक्शनलिटी डिलीट करनी है। सो नाउ आई नीड टू चेक ऑल द रेफरेंसेस रिगार्डिंग दैट कस्टम ऑब्जेक्ट वेयर इट इज रेफरेंस्ड। सो हाउ विल आई चेक दैट? So I'll go there and let's say account लगा लो, कोई custom object लगा लो। I don't have any custom object here. If I have that, I don't remember. I need to check. Let's say example account है, ठीक है? तो मुझे पता लग गया, ओ ये account यहाँ पे referred है। So definitely this is referred here. So instead of going each and every class manually, so अपने को पता लग गया कि भाई इन्हीं क्लास के अंदर ही referred है, इसके अंदर referred है, इसके अंदर भी मिलेगा ये कहीं ना कहीं, देखो इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। सो अपने को सब पता है कि भाई हाँ यहाँ से कोड हटा दो, जो भी आपको अप्रोच फॉलो करना है। सो इट्स इजीएस्ट वे। इम्पैक्ट एनालिसिस देखना है कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे पड़ रहा है, सबसे पहले आपको देखोगे रेफरेंस कहाँ पे है। और लेट्स टेक एग्जांपल, आपको बोला किसी ने कि वी नीड टू फाइंड आउट, वो बोलेंगे आपको, किसी ने टेक्निकल टीम ने बोला आपको कि यू हैव टू गो टू, सो देयर इज अ वन प्रोसेस which is daily basis this batch is running, but we are not aware which is a batch name and all. They told you, so there is a batch, please find out the batch name, a batch apex class name, and then you need to make some modification on that batch apex. टेक्निकल पर्सन नहीं है आपके पास, कोई आपका सीनियर टेक्निकल नहीं है, उन्होंने बोला कि आपके पास बैच एपेक्स है जो डेली बेसिस पर रन होती है, और वो अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, जो भी है। सो सबसे पहले हाउ विल यू फाइंड आउट कि कौन सी बैच एपेक्स है? आई हैव थाउजेंड ऑफ बैच एपेक्स क्लासेस इज देयर, सो हाउ विल यू फाइंड आउट? सो बेस्ट ऑप्शन क्या है, यू नो कि हम क्वेरी करते हैं, एसओक्यूएल लिखते हैं। एसओक्यूएल स्टार्ट मेथड के अंदर क्या होता है, क्वेरी करते हैं डायनेमिक एसओक्यूएल। अब स्टार्ट मेथड में हम लगाएंगे सिलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट, फ्रॉम अकाउंट रहता है वहां पे। इफ यू आर अवेयर अबाउट द बैच एपेक्स सिंटैक्स, बैच एपेक्स के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट मेथड के अंदर क्वेरी करते हैं। अब हमें सबको पता है कि वो मैंडेटरी है। अब जब रिक्वायर्ड है तो व्हाट विल आई डू, आई राइट फ्रॉम अकाउंट। एसओक्यूएल वाला आ जाएगा, जो भी मेरा एसओक्यूएल है। मैं कैसे डीएम है वो, हम क्वेरी कैसे लिखते हैं, क्वेरी ऐसे लिखते हैं ना, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट। अब पता है कि भाई फ्रॉम अकाउंट है, तो एसओक्यूएल मुझे रिट्रीव करना है इसका। सो व्हाट विल आई डू, आई विल गो देयर एंड आई विल फाइंड आउट। सो देयर आर 20 क्लासेस, सॉरी देयर आर 20 क्लासेस वेयर आई इजीली कैन फाइंड आउट कि भाई यहाँ पे एसओक्यूएल हो सकती है मेरी। देखो ये देखो एसओक्यूएल हो रही है यहाँ पे, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम दिस। सो दिस इज अ सिग्निफिकेंस फॉर दिस एडवांस कोड सर्चर। इवन वन मोर थिंग वी कैन डू हियर, लाइक आपको कोड कवरेज उन्होंने बोला, क्लाइंट ने बोला कि यू हैव टू आइडेंटिफाई
all the classes and identify client is saying कि मुझे export चाहिए all the test classes name, all the Apex class name with their code coverage. जितनी भी हमारी classes हैं, so these all are my classes and I need all the code coverage in the Excel sheet. Like ये contact trigger का ये है, इसका ये है, इसका ये है. So they are saying I need in an Excel sheet. How will you do that? You will go one by one and you will tell them, okay, this is a code coverage for this is the code coverage. It's a time wasting, right? So if it is 1,000 of class, then you will spend around 5 to 6 days and you will give to them. Alternatively, what can we do? You will go there. We have this code coverage extract. Okay, you will click on the go button and whatever the classes which we have, so easily you can find out. So this is a filter condition. So you easily can find out and accordingly you can export in the Excel sheet and you can share with them. So in a like in 1 minute, so whatever the code coverage, whatever the number of lines is covered, line is uncovered and total lines and everything. ठीक है, आपके पास सब कुछ आ गया, सारे डिटेल्स आ गए. देखो ये इवन क्लास नेम क्लास. सर ये वाली ये चीज एक बार और बता दीजिए, ये डाउनलोड करने जैसे फिल्टर के यहाँ पे. दिस वन, दिस इज द डाउनलोड वन, दिस वन. ठीक है, सो आपको यहाँ पे टाइप करना है एग्रीगेट कोड कवरेज. No, you no need to type anything. So ये search वाला है, ये दूसरा टैब है. So you can go there and you can find out. Okay. ठीक है. So if you need to, so now we have PMD1. So PMD is a very good feature in Salesforce. This is a new one. So PMD का मतलब क्या होता है? PMD का मतलब होता है कि आपने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं किया है. So whatever the best practices you are not following, so that is it will give you all that classes, all that number of lines also. Even this is a part of VS Code only, but yes, यहाँ पे भी हो जाती है वो चीज. ठीक है, चलो जो भी चीजें रहती है, सिक्योरिटी का पार्ट है, ये परफॉर्मेंस इश्यूज वगैरह रहते हैं. सो ये दिस आर ऑल फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी डू यूज दिस वन. ठीक है, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस फॉर एडवांस कोड सर्चर. प्रोबेबली कि अब काफी हेल्प मिल गई है अपने को जो हम इस एक्सटेंशन को डालते हैं, तो राइट. Where do we have this in the Lightning? Sorry, in Lightning. Yeah, in Lightning we don't have all these things in the left side, but yes, in Lightning we can go to this search box, whatever search we have. If we want to find out some Lightning component references and something like this. ठीक है, अब देखो Lightning में मेरे को ये ऑथराइज करना पड़ता है, but let me do that. It asks every time. Sorry, no. Yeah, this only no, once in the week. Only once. हाँ, per org you need to authorize every time. Let's say कि नया org आपने यहाँ लगाया है, so every org you need to authorize. So this search code comes automatically on the top when I install that. Yeah, exactly, automatically. You are just installing Okay. this extension and automatically it will come. So if you want to find out that like reference everywhere, so let's take example test or whatever, मतलब जो भी आपको लगाना है रखना है. So it is like 38 places. I'm writing employee. So if employee is there, then Aura जैसे Aura component के अंदर है, this is a part of Aura component. So Lightning component is saying it's Aura component, it's a visual force page, it's a Apex class, it's a trigger. So it will tell everywhere. ठीक है, जो भी references आपको देखना है, तो accordingly you can just open that class और आपको देखना है कि अच्छा ये वाला यहाँ से, ये लिंक बन के आ गए हैं, आपको पता है ये Aura component यहाँ से है. Definitely Aura component you can never be open here. Developer console में खुलता है, but हाँ rest of the classes you can open. ठीक है, so you can easily do that. I think I hope everyone is clear with this like this extension. Okay. Right? Okay. So when I install this extension, that debugger will be like automatically black. No. That is different extension. I'm going to tell that one. Okay.
Yeah. So second extension is Apex Debugger. Apex Debugger. So let's take example. I'm going to debug log. I have added this one. Now I'm removing this one. So because everyone will get to know what is the use of that. So हाँ अभी हमने रिमूव कर दिए यहाँ पे और इसको क्लासिक में मूव करते हैं. दैट वुड बी लिटिल फास्ट. ठीक है. So now you can see truly delete all. ठीक है. So but you are not able to see. Let's take example. आपका user यहाँ पे नहीं है. You have logged in at first time in your Salesforce org. You are newly joined a company and you don't have any log created. So you need to create on the new button. And after that you need to set all these things manually. It's a time wasting, right? So why we are wasting our time? Why can't we also can have one button here, directly click on that, automatically one thing will be added here and we directly can delete this one. Or let's say I have around 200 or 10-50 log entries there. So how will you get to know कि ये मेरे वाले कोड की ही है, ये this is specific related to me only. और let's say आपके पास ये कोड है. ओके इस कोड के अंदर हमने डिबग लगाया system.debug और let's open our any trigger. ठीक है. कॉन्टेक्ट अकाउंट अपडेट ट्रिगर. सो ये अपना है यहाँ पे. लेट मी जस्ट सी कि this one is like active or deactivated. Deactivated. Let him activate this one. Okay, so now I have system.debug or I'm adding this one test Amarjeet, कुछ ऐसा लगा दो. And after that you want to execute. First of all you need to check कि whatever functionality I'm doing, so where we are getting the debug log. मतलब कौन सा class है जो कि execute हो रही है, which class is executing. So let's say this one. After that I want to find out some of the things whatever we are getting in this map. So let's say this one and this one. ठीक है. सो ये वाली चीज है जो अपने को फाइंड आउट करनी है. सो मुझे ये वाला फाइंड आउट करना है. बट अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये वाला फाइंड आउट कर रहा हूँ. अब मुझे कॉन्टेक्ट पे मैं अपॉर्चुनिटी पे मैं क्लोन कर लेता हूँ कुछ रिकॉर्ड्स. रीजन बताऊंगा क्या है इसका. बिकॉज आई नीड टू क्रिएट मल्टीपल एंट्रीज. ठीक है. So that's sufficient I think. And let me do this one also. क्या मेरा account phone number should not be equal to this one. Now we have around 6 entries, right? So similarly we can have multiple 100 200 entries also. ठीक है. We have multiple entries now कि मेरा यहाँ पे डिबग किया, वहां पे भी क्या काफी डिबग लोग फायर हो रहे हैं. So how will I get to know कि which one is useful for me. अब मैं इसको भी ओपन करके देखूंगा. Now I will find out कि is it the debug log which I want to find out. So मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा इसको, मैं यहाँ पे जाके देखूंगा ये है मेरा नहीं, ये मेरा नहीं है. So I will go to another one. I'll check कि ये मेरे वाला है, मैं बोलूंगा नहीं ये वाला मेरा नहीं है. So now why I am wasting our time. So
अल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं हम, जो मेरा यहाँ पे एक सर्च बॉक्स हो जाए, मैं यहाँ पे इसको कंटेंट्स में जाके इसको कॉपी पेस्ट करके और यहाँ पे चेक करूँ कि विच वन इज हाईलाइटेड, कौन सा मेरा है, मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि ये मेरा किस डिबग लॉग के अंदर एग्जिस्ट करता है, तभी तो मैं इसकी वैल्यू देख पाऊंगा, राइट। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड दिस apex debugger. So now you can see the difference. I'm going to make it duplicate. और जो हम इसके अंदर भी देखेंगे ना, जो ये वाला भी हम देखते हैं, तब मेरा वो उसमें नहीं दिखाएगा, अभी दिखा रहा है क्योंकि पहले नहीं दिखा रहा था, क्योंकि मैंने अभी ये ऐड कर चुका हूँ। अभी देखो मेरे पास सर्च बॉक्स आ गया यहाँ पे, इफ आई विल सर्च लाइक दिस, सो जो भी मेरा हाईलाइटेड होगा वो हो गया। अब मेरा कोई भी नहीं आ रहा, मुझे नहीं, अब मेरा कोई एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा। नाउ आई विल चेक कि ये मेरा ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये वाला मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा अकाउंट के अंदर। लेट मी जस्ट रिन्यू फर्स्ट, क्योंकि ये हमने ऐड डिबग वो लॉजिक वाला है ना, ये आप वो मैं बता रहा था, न्यू पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, तो ऐड करंट यूजर पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट अगेन, लेट मी जस्ट चेंज द फोन नंबर। और हमारे पास अभी ये करने की जरूरत नहीं है मुझे कि बार बार रीलोड करने का, इसका जरूरत नहीं है। देखो मुझे कुछ भी करना है रीलोड करना पड़ रहा है, राइट। सो हियर वी हैव दिस लोड न्यू लॉग्स, it will automatically bring this entry. Again it is not showing anything. Now let's check manually. Now it is nothing is existing in this one, right? So probably this might oh yeah, this might have some problem, क्योंकि अभी अपने को चेक करना है अकाउंट पे, है ना, ये अकाउंट पे चलना चाहिए। अकाउंट पे we have this one. No, this is not the issue regarding this is another issue. ठीक है, so I'm going to update the account record. I'm going to update the account record and I need to check this custom setting. Custom object. कौन सा रिकॉर्ड अपना is active trigger. This is false. Let me activate this one. Inactive, activate नहीं किया हमने, that's why we were not getting the. अब देखो अपने को, अब मुझे कैसे मैंने इशू फाइंड आउट किया है, देखो मैंने एक्टिवेट किया है, बट मुझे लगा मैंने एक्टिवेट किया है, बट एक्चुअली इट वाज नॉट एक्टिवेटेड, राइट। सो इवन नाउ आई एम फाइंडिंग आउट, सो आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग हियर, सो डेफिनेटली देयर इज सम इशू। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आपको, ठीक है। देखो मैंने सबसे ऊपर लगाया है, तो जबकि मुझे लगा कि ये अकाउंट पे ट्रिगर आया, ओके लेट्स से दिस वन इज नॉट वर्किंग, बट एटलीस्ट दिस शुड वर्क ना, क्योंकि इफ कंडीशन से सारी कंडीशन से बाहर है, this one should work, right? So if I'm trying to find out this one, nothing is showing, it means there is some problem. So now let me just try to update again. Probably it should work now because our trigger is activated now. So this is only the way how to debug the code. इससे ज्यादा कुछ नहीं है, यही वे है कि कैसे डिबग करना है कोड को। देखो अभी एक्टिवेटेड नहीं था, now let me just check again. Now it is showing highlighted one, right? अब जो मैं इस पे क्लिक करता हूँ व्यू पे, अब देखो मैं इन सब पे नहीं जाऊंगा, आई नो नीड टू वेस्ट आवर टाइम। मैं क्यों जाऊंगा इन पे, क्योंकि मेरा यूजफुल मेरे काम की चीज कौन सी है, यही वाली है, राइट। मैं इन पे क्यों जाऊंगा, सो डेफिनेटली आई विल गो देयर एंड आई विल जस्ट फाइंड आउट, ओके दिस वन इमरजेंसी मींस आई कैन नाउ आई एम श्योर कि माय दिस ट्रिगर इज ओनली वर्किंग, यही ट्रिगर है मेरा जो काम कर रहा है यहाँ पे एग्जीक्यूशन पे। नाउ इफ आई वांट टू सी एनी वैल्यू हियर, सो आई विल गो देयर, ओके दिस इज माय वैल्यू एंड व्हाटएवर द डिबग आई वांट टू डू, सो दिस इज माय रिजल्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes. ठीक है। So there I have to select that like word from the trigger that I'll be able to see in the debugger. हाँ, क्योंकि देखो ये तो आपको देखो आपने जो ये चीज नहीं लिखी ना यहाँ पे,
अब आपने ये चीज नहीं लिखी यहाँ पे, यू आर जस्ट डिबगिंग द सेम वैल्यू ओनली, आउटपुट ओनली। आपको कैसे पता लगेगा कि आपके यहाँ पे दो चीज है, लेट्स से कि वन इज न्यू मैप, सेकंड इज ओल्ड मैप। लेट्स से एग्जांपल आपके दो वेरिएबल है, आपको यहाँ पे आउटपुट में आप जाके देखोगे, आपने ये चीज नहीं लिखी आगे से, बट आपको यही चीज दिखेगी, बस यहाँ पे यही वाली लाइन दिखेगी, एक लाइन और दिख जाएगी। तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो लाइन आपकी है? तो यहाँ पे जाके देखना है, इट्स अ टाइम वेस्टिंग, राइट? टाइम वेस्ट होगा इससे। तो बेस्ट वे इज कि यही वाली, ये इससे पहले आप स्ट्रिंग लिखो आइडेंटिफाई करने के लिए कि अच्छा ये इसकी लाइन का ये वाला है, जहां से आप कंट्रोल एफ करके इजिली से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक You है, have to go for Control F. हाँ कंट्रोल एफ करो ना, क्योंकि देखो ये वाला है, सो जस्ट कॉपी दिस वन एंड गो देयर एंड कंट्रोल एफ। सो नाउ इट Okay, from this search menu, it is taking this highlight. Okay, okay. एग्जैक्टली आउटपुट चेक करने के लिए भी उसको देखते हैं। आउटपुट चेक करने के लिए तो कर रहे हैं हम ये। हाँ आउटपुट के लिए तो कर रहे हैं या ठीक है। एंड मेक सम मीनिंगफुल बिफोर राइटिंग दिस डिबग स्टेटमेंट। लेट्स से मीनिंगफुल मींस कि आपको ये फाइंड आउट करना है। इफ यू विल राइट ओनली न्यू मैप एंड न्यू मैप, लेट्स टेक एग्जांपल लाइक दिस ओनली, आपने ये लिखा है कोड ही सेव नहीं हो रहा। Yeah, sorry, there was some network issue. Yeah, so let me just edit this one and let me see. ये भी activated नहीं है, activated है अभी तो। क्या है भाई, account update triggers। ठीक है, सो हाँ तो ये वाला चीज थी यहाँ पे कि आपको थोड़ा मीनिंगफुल रखना है। लेट्स टेक एग्जांपल कि आपने न्यू मैप एंड न्यू मैप ही ले लिया है यहाँ पे, एंड यू वांट टू फाइंड आउट द थिंग्स। सो वो तो न्यू मैप का ये वेरिएबल भी ले लिया आपने, ये भी ले लिया, तो इसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। जैसे भी आप डिबग लॉग वगैरह कुछ अकाउंट को अपडेट करते हो, सो यू माइट फेस सम प्रॉब्लम हेयर। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये होगी कि न्यू मैप कहीं जहाँ पे भी होगा ना, जो लेट्स से न्यू मैप यहाँ पे भी आपको कोई वेरिएबल है, यहाँ पे भी है, देखो कितनी जगह पे न्यू मैप आ गया है। ठीक है, और एग्जैक्टली मुझे चाहिए इस क्लास वाला न्यू मैप। लेट मी जस्ट गो देयर, लेट्स चेक। मैंने देखा 6 लाइन पे, ये तो 6 पे नहीं, ये तो 13 पे है। तो फर्स्ट टाइम मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, फिर मैं गया दूसरे वाले के अंदर, मुझे लगा यहाँ पे एग्जिस्ट करता है ये, तो फिर मैंने गया यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया यहाँ पे भी मेरा नहीं है, तो ये भी मेरा टाइम वेस्ट हुआ। सो व्हाई वी आर वेस्टिंग अवर टाइम? सो इफ यू विल डू लाइक दिस सम मीनिंगफुल, कि यहाँ पे डॉलर डॉलर हैश या डॉलर डॉलर या कुछ भी लगा लो आपकी साइड से, ऐसा कुछ लगा लो कि आपने जब सेव किया, मतलब जो भी आप सेव कर रहे हो कोड को, अरे वो काम है कोड, 1 सेकंड मैं इसको बंद कर लेता हूँ। अकाउंट अपडेट ट्रिगर, ठीक है। अब की बार हमने ऐसा लिखा, और नाउ लेट्स चेक कि ये अपना टाइम सेव करता है नहीं करता है। मल्टीपल, इंस्टेड ऑफ गो मल्टीपल डिबग लॉग्स, so we should go only single one. So now let me just